So we are live. Welcome to the Transcontinental Times. और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास guest हैं. Very special guest we have joining us from Bhopal. The one and only Sadu, the founder member of the legendary Aryans band, and who himself has been a phenomena for as long as I can remember. Sadu, thank you so much for taking the time out. और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो I think इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप एक अपने पीस के साथ शुरुआत करें and oblige us with beautiful melody. Pleasure is all mine, Murtaza ji, and thanks Transcontinental Times for calling me in here and to rope me in. It's a real pleasure to me. And I'll start out with one of the songs which just recently released that was called as Mausam. And इसने वीडियो पे YouTube में it's got millions of views and I think हम उससे शुरुआत करते हैं. तन्हा मैं खड़ा इन राहों में तेरी ही कमी खल रही मुझे. तन्हा मैं खड़ा इन राहों में तेरी ही कमी खल रही मुझे. मौसम भीगा भीगा चांद मध्यम मध्यम. मौसम भीगा भीगा चांद मध्यम मध्यम. तन्हा मैं खड़ा इन राहों में तेरी ही कमी खल रही मुझे. आप सुनते हैं मुर्तजा जी, आई रिटन द सॉन्ग एंड अंतरा सेज क्यों है फासले अब दरमियां तेरे बिन सूना है आशिया. है उस पल का इंतजार तुम जब आओगी इस पार. कब से मैं हूँ बेकरार अब तो बस कर मेरे यार. मौसम भीगा भीगा चांद मध्यम मध्यम. तन्हा मैं खड़ा इन राहों में तेरी ही कमी खल रही मुझे. Beautiful. Thank you so much. थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड भी दे दें for the benefit of our viewers इस song का, तो I think they'll be more enlightened. Yes, I'll talk about more. And we'll also leave the link. We'll also leave the link in the comment section so that they can always go back and listen to the whole thing after the discussion. Yeah. As you know, my background was with Aryans and हम लोग खुद ही गाना लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गाते हैं, खुद ही इसका प्रोडक्शन भी करते हैं. तो बहुत सारे काम खुद ही करना पड़ता है. तो in 2019 I came out with this concept of making Mausam and करीब 6 महीने में ये जो गाना है ये तैयार हुआ. Then I recorded it and we I think launched it in the December of 2019. और बहुत ज़बरदस्त इसका वो रहा because you can say that comeback of me after so many years. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसका. And best thing of Mausam was that we didn't use any electronic instrument. It was totally live acoustic, which is very seldom actually. People don't do that. People are like totally आजकल तो बिल्कुल आप जानते हैं मैं it's production totally full electronic latest gadgets and plugins and blah 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 blah. But मैंने drum kit which is the hardest thing to mix in live. मैंने ड्रम भी लाइव यूज किया, ड्रम किट को लाइव किया, बेस एवरीथिंग वाज लाइव, हार्मनीज एंड ऑल. एंड आई वाज सैटिस्फाइड. बेसिकली क्या होता है कि म्यूजिशियन को खुद सैटिस्फाई होना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया. तो मौसम वाज वन ऑफ माय ट्रैक्स व्हिच आई वाज रियली satisfied that I've done something. Yes. Bravo. I think that was the first time we had connected and I had interviewed you for one of the publications and that's how we got connected. And I think I have been really lucky that over the coming months you have one after the other you have come out with some very interesting offerings. अब मुझे एक होप जाग गई है. बीच में एक टाइम आया था, बहुत ही डार्क फेज था. As I was also talking to you offline, मुझे लग रहा था कि शायद इंडी म्यूजिक इंडिया में जो है कहीं ना कहीं it's dying a slow death. But seeing you around and seeing the revolution that's now slowly cropping up, और एक मैं renaissance type महसूस कर रहा हूँ, म्यूजिकल renaissance हो रहा है इंडी स्पेस में, इंडिया में in particular. तो I think that is something that really makes me happy.
and you are once again at the forefront of that, like you were, back when you were with Aryans. Yep. Because whenever I speak to somebody, they really relish the 10 years, one decade of pop, which they like growing up or whatever. That was 90 to 2000 or maybe 2000 lately, early 2000 uh, millennium, right? And सब लोग चेरिश करते हैं उस मेमोरीज को, बोलते हैं कि हम लोग MTV चैनल भी यूज करते थे एंड ऑन करते शायद इतने तक, मतलब दोज वेर सोलफुल सॉन्ग्स बेसिकली, उसमें कोई वो नहीं था. Love Vida, we were there. Lucky Ali was there. We were many artists were there, and I'm getting goosebumps. You know that? मतलब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. अपने आप में आप सब लोग इंस्टीट्यूट थे. मतलब आज मैं सोचता हूँ कि आज का जब मैं सीन देखता हूँ और मैं कंपेयर करता हूँ, बैक इन, वो जो आपने डिकेड की बात करी 90s से, अगर हम अर्ली 2000s की बात करें, तो एक बंदा या एक ग्रुप ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था. आज अगर हम सारा म्यूजिक भी कंबाइन कर लें तो शायद आपके एक भी इंडिविजुअल की बॉडी ऑफ वर्क के आसपास नहीं आएगा. And this is not an exaggeration, because you look at the Aryans, you look at Euphoria, you look at even Junoon, जो बाहर से भी बैंड्स आ रहे थे, even somebody like बाबा साइगल, जैसी भी, कितने ज्यादा बड़े बड़े नाम थे. Even दलेर मेहंदी was in a very very interesting space. बहुत कमाल था. हम लोग, मतलब म्यूजिक की एक अलग ही जर्नी रहती थी, सबकी इंडिविजुअल जर्नीज रहती थी म्यूजिक की भी, और हमारे बीच में लड़ाई होती रहती थी, भाई मेरा फेवरेट जो है ये है, नहीं मेरा फेवरेट वो है. तो आपस में एक राइवलरी रहती थी बिटवीन फ्रेंड्स भी, कि नहीं यार मैं तो इस बैंड को फॉलो करता हूँ, जैसे वेस्ट में रहता था कि नहीं यार मैं तो रोलिंग स्टोन हूँ, नहीं मैं तो बीटल्स हूँ. तो उस तरह से एक राइवलरी चल रही थी यहाँ पे भी. और हमारा भी ऐसा रहता था कि मॉर्निंग में वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली एंड आफ्टर टेकिंग टी और कॉफी व्हाटएवर ऑन MTV and see कौन नया निकला है आज. किसका रिलीज हुआ है. It was fantastic actually, मतलब. But I think things are changing, and having so many OTT platforms and audio platforms around, I think the thing is happening now. It is changing for good in music at least. Yeah. But Sadu, what happened? Where did it all disappear? The scene. क्या लगता है आपको? What really went wrong? या what really happened? और क्या ऐसा change आया कि suddenly it all disappeared? I think it's the internet which helped out. I will say that we are very unfortunate on that part कि जो पहले CDs बिकती थी और कैसेट्स बिकती थी, because of which music companies का revenue खड़ा हो जाता था. That is gone. That was actually diminished on 2002 and 2003 when there was this blast of internet. और मेरे ख्याल से फ्री डाउनलोड जब से शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से म्यूजिक कंपनीज आर नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड टू साइन आउट आर्टिस्ट फॉर. तो इसीलिए मेरे ख्याल से सारे एक साथ चले गए. एंड सेकेंडली मूवीज एक्चुअली, उनके जो गाने होते हैं, उनका जो प्रमोशन का बजट्स होता है, दैट इज you understand what I mean. They are 100 folds more than independent music. तो उन्होंने dominate कर लिया, and lots of other factors which went into, and मेरे ख्याल से इसलिए धीरे-धीरे हो. But now I think it's changing, and for good. I was listening to Rahul Ram recently, और वो ये बता रहे थे कि he has been singing since the 70s, लेकिन वो कह रहे थे कि जो उनको एक अनुराग कश्यप की फिल्म जो थी ब्लैक फ्राइडे, जितना विजिबिलिटी और बार बार रेडियो पे वो गाना बजता था, जितनी विजिबिलिटी उनको उस पर्टिकुलर एक छोटे से मूवी के साथ कोलैबोरेशन से मिली, उतनी पब्लिसिटी उनको इतने 30-40 साल के करियर में नहीं मिली. यू आर वेरी राइट. और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब इट्स आयरॉनिकल कि आज वो मूवी वही 90s के उन पुराने सॉन्गों को री इन्वेंट कर रही है, रीमिक्स कर रही है. वो जो सॉन्ग, सोलफुल सॉन्ग्स हुआ करते थे, हम 90s में सुना करते थे, आज वही बहुत ही लाउड वे में रीमेक्स करके प्रेजेंट किए जा रहे हैं. तो कुछ नया तो है नहीं, वो पुराने को भी, मतलब इन अ वे आप धीरे धीरे उसकी वो क्वालिटी जो है, या जो हमारे दिमाग में यादें हैं उसको लेकर, उसको कहीं ना कहीं यू आर पॉल्यूटिंग दैट. I think so, yeah, because जो मेरे ख्याल से doing a cover or doing a remix of somebody else's song is wrong, because उस पे किसी और का, it's as if किसी और के घर के आगे आप अपना नेम प्लेट जाके लगा ले, तो बिना उसको खरीदे हुए. That's what I see. Yeah, maybe there's no creativity left, because of which people are doing covers. I don't know, मतलब. एंड दूसरी चीज, मैं जो नए बच्चे मिलते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि डोंट डू कवर. इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने गाने पे कर लो, राइट? few lines, very true. आप एक पॉलिश करके इतना कपड़ा वार्डरोब बनवा रहे हैं, यू आर गेटिंग इट डन इन अ DSLR कैमरा, व्हाटएवर आप शूट कर रहे, कुछ तो खर्चा हो रहा होगा आपका. व्हाई नॉट डू इट फॉर अ सॉन्ग? व्हाई प्रमोट देम, या व्हाई उनकी अपना वो क्यों बढ़ा रहे हैं आप, जो
क्या बोलते हैं, रॉयल्टी, सॉरी उनकी रॉयल्टी बढ़ती जा रही है तुम्हारे कारण. सो आई कीप ऑन, यंगस्टर्स जो भी आते हैं उनके सामने मैं बोलता हूँ कि प्लीज, एंड 1,000 claps for a cover version and 3 claps for your song. I believe three claps is better than the 1,000 claps, because Wow. that is going to the Wow. artist जिन्होंने perform Wow. किया. तो मुझे Wow. लगता है कि yeah, that's what I I keep on trying myself, because I don't do that. I do my own stuff, and मेरे घर वाले तो एटलीस्ट मेरे सुन लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, you know, already even your new songs are getting millions of hits. और Yeah. जैसे मैंने बोला, like my favorite has been खोज. We'll come to that. पर थोड़ा सा साडू, I also want to start with your journey. ये कैसे start हुआ, you know, ये आर्यन्स के साथ जो collaboration हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? What brought you in the industry to begin with? I started off playing a keyboard in a small orchestra in Bhopal before, and in Itarsi. There's a small place near Bhopal, and I once started big. मैं compose उसी समय से शुरू कर दिया था. It was, I'll tell you, it was way back in 1990 when I started composing. But I kept it to myself, because when I say that मैंने ये गाना बनाया, किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आता. देव सुना है? नहीं, किसी का कॉपी किया हो. आई केप्ट इट टू माई सेल्फ. आई केप्ट इन माई डायरी, एक कोने में रख दिया उसको कि जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे उसको. देन समय गुजरता गया. देन आई मेट मिस्टर डीजे नारायण. वो यहाँ पे भोपाल में प्ले, वो ही वाज पोस्टेड एज आईएस इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में थे वो. तो आई मेट हिम हियर इन भोपाल, एंड ही आल्सो हैड द सेम अपना जो आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, मतलब क्रिएटिंग इन द सेंस राइटिंग आल्सो, सिंगिंग आल्सो, एंड कंपोजिंग आल्सो. तो हम दोनों मिल लिए. हम लोगों के यार आई थिंक माइंडसेट हमारा वेवलेंथ भी मैच कर रहा है, लेट्स डू समथिंग टुगेदर. फिर हम लोगों ने शुरू किया इस चीज़ को, एंड वी वेंट टू बॉम्बे एंड मेनी रोलर कोस्टर राइड्स, यू अंडरस्टैंड, मेनी म्यूजिक कंपनीज यहाँ वहाँ दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत कोशिशें की. देन लास्ट जो हमारा ये था, दैट वाज पॉलीग्राम, नाउ यूनिवर्सल. पॉलीग्राम में हम लोग गए, हमारा जो डेमो था, स्क्रैच था, हम लोगों ने वहाँ पे पेश किया. देन वहाँ पे जय वालिया, he came there, and music company proposed us कि why not we have a 3-member band, because it's a very, उस समय Boyzone और ये 2-3 और वेस्टर्न जो बॉय बैंड्स बहुत चल रहे थे. तो they thought कि why not we make a first boy band of India. Then they had us, me, DJ Narayan and Jay Walia. हम तीनों का एक ग्रुप बना, और जिसका नाम ललित सेन, he was doing the music for us. So उन्होंने सजेस्ट किया कि यार ऐसा नाम रखते हैं. तो all of this we didn't have any choice, because Aryans sounded very nice musically also. Beautiful, yeah. And Aryans को invasion के हिसाब से लेते, they invaded what you call in the end. तो मैं बोला यार दोनों मैच कर रहा है. Anybody didn't have any negative thought for Aryan. So we went ahead अब with तो that. उसको लेके भी काफी you know revisitations हो रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन हाँ, that is for some other you know time. But I must say कि there was a musical ring to it. जो नाम था ना आर्यंस, सुन के ही एक म्यूजिक उसमें से आता है. जी. Even now, we are known as melody makers, and with soft lyrics, whatever, and we are pursuing it as the same way. मतलब keeping that is our spinal cord, that is our basic thing. मैं हमेशा किसी से बोलता हूँ, कोई पूछता सर वो गाना कैसा बनना चाहिए या कैसा, मैं बोलता हूँ यार as simple as possible. तुमने अगर 3 साल के बच्चे को गवा दिया, I'll salute you. अगर 3 साल के बच्चे को गवा दिया, मतलब that is the hardest thing to make. बाबा ब्लैक शिप is the most tedious job. मैं सिम्फनी 5 मिनट में लिख दूंगा आपको, बट वो आपको समझ में नहीं आएगा. बट बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी गोल, ये यस सर वो बनाना टिपिकल काम है. इट्स द हार्डेस्ट पार्ट, आई बिलीव. तो बाबा एक 3 साल के बच्चे के लिए अगर आपने गाना बना दिया, मतलब आई एम कीपिंग इट एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट टू इजीएस्ट सिंपलेस्ट ट्यून. सिंपल ट्यून बनाओ, सिंपल लिरिक्स लिखाओ, इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट टू पीपल एज वेल. शैलेंद्र जी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निहार, मतलब सिंपल लिरिक्स, वेरी इट्स स्ट्रेट अवे गोइंग टू योर हार्ट. दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो हमारा जो मेन फोटे है, दैट इज सिंपल म्यूजिक, simple melody and nice lyrics, and okay video without any vulgar this thing. It doesn't need actually. हमारे जो lyrics होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इंशाल्लाह. yeah. मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप में से जो लोग शायद जो 90s में ग्रो हुए हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग 90s के बाद ग्रो हुए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि हाउ यू नो सॉन्ग्स लाइक आंखों में तेरा ही चेहरा, they were
anthem. They were like revolution, and how songs like these, they help launch careers of people like Shahid Kapoor. आप अभी भी YouTube पे जाएंगे, that song has got millions of hits. आप देखें वो जाके, you will realize, you will see Sadu also featuring in that song. So this is the rich history that we have. जो 90s में हम जैसे लोग जो grow किए हैं, for us it was really the best time of our lives. हम लोग अभी भी revisit करते हैं. अब YouTube है obviously, पहले हम लोग हमारे पास CDs वगैरह हुआ करती थी. Otherwise हम लोग दोस्तों से बोरो कर लेते थे अगर अपने पास नहीं होती थी. तो एक अलग तरह का वो कल्चरल रेवोल्यूशन था, एक अलग तरह की मूवमेंट थी. ये सॉन्ग्स हमारे लिए एंथम्स थे. और आज थोड़ा सा सीन बदल गया है. आज जो बॉलीवुड का म्यूजिक है वो थोड़ा सा हैवी हो गया है. एंड आई सपोर्ट बॉलीवुड म्यूजिक, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, लेकिन रीमिक्सेस को लेके थोड़े से मेरे एप्रीहेंशंस हैं. साडू ने भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव में रखा कि क्या पर्पस होता है टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, उसमें लाउड बीट्स डाल देना. अगर आप रीमिक्स भी करते हैं तो मुझे इनफैक्ट कई बार लगता है जो 90s के रीमिक्स जो करते थे और पुराने सॉन्ग्स के, 90s के रीमिक्स वर बेटर देन जो आज रीमिक्स हो रहे हैं. आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारे उस वक्त जो सिंगर्स नए नए आ रहे थे, वो लोग पुराने जमाने के मोहम्मद रफी के, किशोर कुमार के रीमिक्स किया करते थे. उस वक्त भी लोगों को पसंद नहीं आते थे. जो प्यूरिस्ट थे वो कहते थे यार ये रीमिक्स का कल्चर अच्छा नहीं है. बट इफ यू कंपेयर दोस रीमिक्सेस जो आज के रीमिक्सेस हैं, तो यू आर लाइक ओ माय गॉड, दे वर स्टिल अ लिटिल सेन. उनमें कुछ सैनिटी तो थी. आज के रीमिक्स तो बस धड़ 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 धमाल, और सारा का पूरा बीट बदल देते हैं, सारे रिदम बदल देते हैं, सारा सोल बदल देते हैं. और उस पे फिर जो वीडियोस जब उसका बना के रिलीज करते हैं, हमने देखा भी है मसक अली का ही, हालांकि मसक अली उतना पुराना नहीं है, और उसका भी जो आया था, ये आते रहते हैं बहुत सारों के. तो वी आर शेल शॉक, ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, वेयर आर वी हेडिंग. बट देन फिर उसके बाद मुझे खोज जैसी चीजें देखने को मिलती हैं. आई सी यू एंड आई सी समबडी लाइक एन अभिमन्यु कुकरेजा, जो इंडिया की पूरी रॉक सीन पे अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लगाई है, जो भी थिएटर्स में भी रिलीज हो रही है डॉक्यूमेंट्री. सो आई सी अ लॉट ऑफ होप. यस 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 बिल्कुल. एंड उम्मीद पे दुनिया कायम है. बिल्कुल बिल्कुल. बट साडू, एक जो क्वेश्चन बहुत सारे आपके फैंस भी पूछते होंगे और मैं भी पूछना चाहता हूँ कि बीच में वेयर डिड यू डिसअपियर, क्या हुआ है लंबा जो हमारा जो हाइटस आ गया था, व्हाट केप्ट यू बिजी इन दीज इयर्स? That's what as I told कि थोड़ा सा म्यूजिक कंपनी की तरफ से भी थोड़ी लापरवाही रही. They didn't contact us or whatever, and we were actually based in 3 different cities, so it was not easy for us to communicate very often because a band needs compatibility and हमेशा मिलना और बैठना और फिर वो धीरे-धीरे because families there, lots of other purposes, and unfortunately हिंदुस्तान में म्यूजिक के अलावा कोई summer of 69 Jody quit and somebody got married and yeah, so similar story. Same way. मतलब आप अगर शादी में किसी हिंदुस्तान में म्यूजिक के लिए किसी के पास जाओगे, आप तो बोलेंगे म्यूजिक तो ठीक है, करते क्या हो? So people feel कि ये तो ठीक है, पैशन है आपका, लेकिन करते क्या हैं बेसिकली. तो आई एम लकी इनफ टू हैव अ वाइफ. उनके पिताजी ने मुझे दे दिया, बट फिर भी ये पूछते हैं बिकॉज यू नीड टू हैव पैरेलल जॉब इन इंडिया. दैट्स द वे हैज बीन इन इंडिया. लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग. आई एम श्योर कि we can say the positive side of that also. तो बीच में हम लोग तीनों, जय अपने काम से he was in Bombay, now he's in Delhi. DJ also was in Pune for quite some time. He was in Bombay. I was in Bhopal and Bombay both. तो बहुत सारे connections, मतलब नहीं रह पाए, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो anyway, now I am carrying my own stuff and they are doing theirs, and hopefully they are doing very fine with their music. And personal space में do you really feel that it's important to reinvent oneself from time to time? Because I feel that even you are trying to reinvent yourself with each new song, and it's every time you are trying to come out with something very very refreshing. Exactly. Is it a conscious effort? It is a deliberate attempt basically. I do what because अगर आप आज की तारीख में old school जाएंगे, या if I'm 20 years old and मैं same का same अगर मैं चीज पेश करूंगा आपको, you won't like it. You need to have the latest sound. You have to have the contemporary sound which connects with the youngsters today. अगर नहीं कर पाए तो then you're out immediately. And I keep on experimenting. मैंने एक पंजाबी गीत भी किया था, पंजाबी गाना भी किया, but my way, because melody, that's what I said, spinal cord हमारी मेलोडी होती है. तो सेम आई यूज माय कंटेम्पररी साइड, नॉट दैट बिल्कुल मैं जो डिकचिक चल रहा है बिल्कुल उससे दूर. वेरी वेरी सूदिंग म्यूजिक. यू कैन गो फॉर अ ड्राइव एंड लिसन टू माय सॉन्ग्स. दैट्स व्हाट आई इंटेंड टू मेक आल्सो. कि
आप गाड़ी चलाते थे बिल्कुल आप तेज नहीं चलाएंगे, क्योंकि आप डिग डिग करेंगे तो तेज चलाएंगे, तेज मत चलाइए, धीरे चलाइए एंड लिसन टू माय सॉन्ग्स, दिस इट. So then after that I came out with आँख से दूर न हो was actually ये इसकी जो पनपने की चीज़ यह बहुत उम्दा है. जब ये लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपना अपने काम कर रहे थे, हम तो घर से बाहर निकल रहे थे, यू कांट गेट आउट ऑफ योर होम. तो क्या किया जाए, तो माई आई यूज्ड टू सिंग गजल्स एंड आई यूज्ड टू मैं रियाज करता था गजलों के. तो मैंने गुलाम अली साहब और मेहदी हसन साहब इन लोगों की गजलें फेसबुक पे लोड की, एंड यू वोंट बिलीव आई हैड 5000 ऑड शेयर्स एंड इक्विवेलेंट कमेंट्स फॉर, लोगों ने लिखा कि सदू भाई आप गाते तो ठीक हैं, अपना क्यों नहीं गा लेते खुद का. देन आई केम आउट विद दिस एंड बट आई सेड दैट आई नीड टू कीप माय मैं क्या हूँ उसमें, मैं कुछ छोड़ूंगा अपना. सो मैंने फिर उस कोशिश किया कि आई गिव अ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक. मैंने गिटार्स, ड्रम्स और बेस जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में यूज होता है वही यूज किया. बट आई टुक आउट अहमद फराज साहब का आँख से दूर न हो. 2 लाइन सुनाता हूँ आपको. जरूर जरूर. आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा. आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा. वक्त का क्या है गुजरता है, गुजर जाएगा. आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा. डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा. वक्त का क्या है गुजरता है, गुजर जाएगा. आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा. क्या बात है. This was it, yeah. Beautiful, really Thank you so much. Soul searching and really beautifully sung. थोड़ा सा साडू, आई वांट अंडरस्टैंड आपकी जो उर्दू है माशाल्लाह इतनी शानदार है, एंड जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि he originally hails from Kerala if I'm not wrong. Yeah, I'm from Kerala basically. तो ये जो उर्दू है नॉर्थ इंडियंस भी probably we try and we fail because we don't have that command over उर्दू, एंड ये जो एक खालिस जो अल्फाज हैं, तो what is the secret behind this? एक्चुअली अगर आपने कुछ सोचा हुआ है देन फिर वो बाकी चीजें, इफ यू हैव समथिंग इन माइंड कि ये मुझे करना है, फिर बाकी चीजें आई थिंक इट कम्स साथ में आ जाती हैं. हरिहरन जी देखिए आप, ही इज अ साउथ इंडियन, ही इज फ्रॉम केरला बेसिकली, एंड नाउ उनके तलफ्फुज देखिए आप, जबरदस्त हैं. एंड आई इंटेंटली एज आई सेड from my teenage when I was 11 to 12 years old, I used to listen to Ghulam Ali Sahab, I used to listen to Mehdi Hasan Sahab, Jagjit Singh ji. Though मतलब when I was merely 11, तो वो तो आपके इनहेरिट हो गया, मतलब went into my blood actually. तो मैं चाह के भी मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कर पाऊंगा उस चीज़ के ऊपर. एंड आई स्टडीड अ लॉट एक्चुअली. मैं गज़लें मैं पढ़ता भी रहता हूँ बहुत सारी. मैंने कुछ लिखी भी है शायरी, मतलब तो खुद की. तो आई कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर, मतलब टाइम है इतना से 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट to do that. And also you are doing some interesting fusion work also, like Hindustani vocals, Carnatic instruments. Tell us a little about that also, where that comes from. Comes as music. You can't teach somebody. It's inherited actually. मतलब मैं तो कहता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, they are blessed. They are totally blessed because वो लकी हैं कि ऊपर वाले ने उनको नवाजा इस आर्ट से, किसी भी आर्ट से, क्योंकि वो एक आम आदमी से अलग हटके चीज़ है. उसको कितना डेवलप करना है, कितना ऊपर तक लेके जाना है, कितना आगे तक लेके जाना है, वो आपकी काबिलियत है. लेकिन गॉड ब्लेस, मतलब जिसके पास भी आर्ट है, आई बिलीव दैट ही इज ब्लेस्ड टोटली.
तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने वो किया था, खोज में मैंने ट्राई किया, क्योंकि जो सिंगिंग इज टोटली हिंदुस्तानी, एंड आई ट्राइड टू, सुमेश फ्रॉम केरला, ही प्ले द गिटार्स इन दैट, यू कैन सी द प्लेइंग ऑफ इट, इट्स टोटली कर्नाटिक। तो ये ब्लेंड जो मैंने किया है, दैट वाज, एंड ड्रम्स पीछे चल रहे हैं, मतलब इट वाज ए फ्यूजन टोटली, कि कर्नाटिक का म्यूजिक चल रहा है, मतलब जो म्यूजिक पार्ट है दैट इज कर्नाटिक म्यूजिक, एंड देन यू केम बैक टू हिंदुस्तानी व्हाइल सिंगिंग, द कंपोजिशन इज टोटली हिंदुस्तानी। तो ये मैंने कुछ, मतलब करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कीप ऑन डूइंग समथिंग एल्स, कि आई डोंट वांट टू डू, मतलब कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उसको मैं काहे के लिए दूं, आई विल डू समथिंग व्हिच आई लाइक, कुछ नई Also, चीज। the music video directed by Carol, that's really, really in a different space if I compare to the music, if I compare to the vocals. It's shot entirely in Canada and it's got a Yeah, very, very Western touch. yeah. So, what was the idea behind that? Again, trying to blend different cultures, different ideas, different thoughts, and yet able to produce something so coherent. Yeah. This also is a very very interesting factor actually. अभी लॉकडाउन के कारण there was no shooting happening, so it was like very hard to do something very unusual, और या बहुत अच्छी करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, मतलब your hands are tied basically। तो ऐसा हुआ कि फेसबुक से, मतलब आई गॉट कनेक्टेड विद करोल, एंड आई जस्ट सेंड हिम दिस सॉन्ग। तो ही वाज लाइक टेकन अबैक, बोले कि यार गजब, आई लव दिस सॉन्ग, मतलब मेरे शाम के लिए तो मसाला मिल गया मुझे। Wow. देन आई वेंट अहेड, मैंने बोला यार कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, आई गेट बैक टू यू। देन ही वेंट ऑफ, एंड आफ्टर अ वीक, बॉस मैंने आई एम ओके, आई हैव डन माय स्क्रिप्ट वर्क, एंड जस्ट सी दिस, सुनो। देन उसने मेल किया मुझे, आई लाइक्ड इट। देन वेलरोस, शी इज द Yeah, एक्ट्रेस I इन दैट। think she has emoted wonderfully in that video. The emotions are एग्जैक्टली, so genuine. तो Because शी there's a हैड lot of गॉन, pain, the character, there's so much of pain in the voice, there's so much या of pain in the circumstances, and to emote that is never easy. एग्जैक्टली। सो शी हैपेंड टू मीट कैरोल, एंड कैरोल ने मुझे फोटोग्राफ भेजा, मैंने बोला कि आई डोंट माइंड, यू कैन, मतलब यू आर देयर एंड यू सी द what do you call, visual impact, how is it coming, and please go ahead. So I shot my part here in India, and they shot theirs there, and it came out brilliantly. I'm sure it's technically it's looking wonders, and music and दोनों combination. See, this thing is what do you call, a boon. That's what I said. हम घर में बैठ के, यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठ के ये काम हो गया, and you are seeing it on YouTube. ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी है बेसिकली। सो मैं कहूँगा कि इंटरनेट ने हमारे लिए कुछ बिगाड़ दिया था व्हेन इट वाज अवेलेबल फॉर डाउनलोड्स, बट मैं ये भी कहूँगा कि इंटरनेट ने हमको वापस लाया है, हमें इतने सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, इतना ये टेक्नोलॉजी दी कि वी कैन मेक दिस वीडियो लाइक दिस, इट्स वंडरफुल एक्चुअली। I'm coming out with my next one very soon. I'm launching my audio on 21st. It's named Habib. वो भी Wow. इंशाल्लाह आपको या तो पसंद आना चाहिए। So before that, I think Inshallah, I'll zarur try to. aayega. Yeah, please, please. I was about to request you. हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में है समंदर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में है समंदर मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, किससे पूछूं कि कहाँ गुम हूँ मैं बरसों से, किससे पूछूं कि कहाँ गुम हूँ मैं बरसों से, हर जगह ढूंढता फिरता है
मुझे हर मेरा हर घड़ी पदर से उलझना है मुकद्दर मेरा. Lovely. My favorite of your second innings so far, and I hope that the next one will soon, topple that. Yep. Sadu, I also wanted to ask कि lockdown कैसा था, for the music industry के perspective से बात करूँ. Individually तो आपने बताया that you were able to experiment and all that, but how do you see it from the perspective, because live performances होना बंद हो गए हैं, काफी कुछ चीजें सफर करी हैं, हालांकि ऑनलाइन स्पेस में अगेन वी सॉ अ रिसर्जेंस ऑफ सॉर्ट्स. What do you think is going to be the long term impact of this lockdown? I think as I suggested, I told you before also, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स निकले हैं and people didn't know what to do basically. लाइव तो करने के लिए नहीं है. So even I spoke to somebody in Spotify a couple of days back, so they said that there is a boom in independent music. There Wow. are literally इतने सारे artists नए आए हैं, in thousands they have uploaded their songs, or they've made it available on all the audio platforms, and it's doing well. There are lots of new artists coming up. मतलब they are getting honored also, they are getting popular also. ये सुनने में आया तो that's a plus point actually. If I see that नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, नए गाने, जो मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक शुड हिंदुस्तान में ऐसा इक्वल हो जाए, मतलब जैसे वेस्ट में होता है उसके इक्वलेंट हो जाए, वो दिन दूर ना हो. कितनी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए. तो दिस वे आई थिंक इट्स डन वंडर्स. But for the fact that there's a lack of shows, जिसके कारण I think livelihood बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया. That's an unfortunate part anyways. But at the end of the day, you need to fight the COVID. That is more important. You see the priorities basically. तो प्रायोरिटी में हमें सबसे पहले तो कोविड से लड़ना है, उसके बाद खाने पाने का. तो पहले तो हमें उसको मारना है. सो आई थिंक म्यूजिक के लिए बहुत सारी चीजें प्लस में हुई हैं, बहुत सारी चीजें माइनस में हुई हैं. दैट हैपेंस इन एवरी पैंडेमिक बेसिकली. तो हमें लगता है कि जो इसमें से पॉजिटिवनेस हुआ है, पॉजिटिविटी हुई है, उसे हमें लेना चाहिए. नेगेटिविटी आई थिंक वी शुड ड्रॉप दैट. तो कुछ तो अच्छी हुई है. एंड उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे शो शुरू हो गए हैं, विच इज़ वेरी इजी ऑल्सो, क्योंकि आपको मेरा शो देखने के लिए आज की तारीख में हम लोग बैठ के इतने दूर से कम्युनिकेट कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू कम टू माय ऑडिटोरियम टू सी माय शो. आई हैव ऑलरेडी डन इट इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है. There are good बड़े shows भी हो रहे हैं. I've seen many platforms which are introducing good music. Fusion चल रहा है. कल परसों मैंने किस देखा था. तो I think वो भी हो रहा है. And there is driving shows happening. बहुत सारे keeping that the social distancing and all. That also is one nice. I think जब कुछ अगर if you want to leap, तो you need to go 2 steps back. पीछे 2 कदम पीछे जाने के बाद ही आप जंप कर सकते हो, क्योंकि उतना दौड़ के जाओगे तभी आप जंप करते हो. I think मुझे लगता है कि तो मुझे लगता है कि if you want to leap, then 2 कदम पीछे चलना पड़ता है. तो हम लोग 2 कदम पीछे इसलिए आए हैं कि we are going to leap. I think so. So we all are waiting for that leap, or I can't wait for your upcoming offerings. And thank you so much, for enlightening us, for entertaining us with such soulful lyrics, with such soulful music. And thank you so much for trying to revive, the indie scene in India, which has always been very, very close to our heart, right from, 90s. And finally, with you trying to do something interesting in the independent space, I think we see a lot of hope, with also a lot of youngsters also coming ahead and trying to reinvent what used to happen in the 90s. तो एक step आगे ही दिखता है. I think which you very beautifully said कि leap लेनी है तो 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा. तो जो बीच में जो void आया था वो I think वो 2 कदम पीछे ही जाना था. And now I think we are in that position कि आप वो leap ले रहे हैं, and I think we are already seeing the immediate results of it. I really look forward to the long term results. Yeah, I think so. कि इसमें से अच्छा ही निकलना चाहिए. And that's what I have seen कि इतने सारे अगर आर्टिस्ट आ रहे हैं, that is for good. हिंदुस्तान को और आर्टिस्ट चाहिए, जितने इंडिपेंडेंट म्यूजिक हैं. And while who are listening to me, please come ahead and drop your songs, and people are there waiting for good music. तो बिल्कुल आओ, दम लगाओ. And for those who are new to me, I'm Sadu. I have a YouTube channel called Sadu Music. I also have a page. Please like it. Please go to that for my updates and all whatever is coming up. उससे पहले I'll just sing 2 or 3 lines of what made. Yes, the perfect. It has to end on a high note.
एग्जैक्टली है। तो 2-3 गाने हैं उसमें से, which song would you prefer to listen to? Which one you want? I completely leave it to you. This was from our band called Aryans and Jaywalia, DJ Narayan. We were the three trio. Wow. We had Wow. this song, and it's Wow. our song. It's not mine. It's Aryan's song. Wow. Wow. कौन सा? ये हवा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना, मेरी जाना। ये फिजा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना, मेरी जाना। बिन तेरे मैं कैसे जी सकूंगा, तेरा प्यार कब मैं पा सकूंगा। प्लीज सिंग अलॉन्ग। मेरी दुआ चाहती है क्या, तेरा प्यार जाना, मेरी जाना। ये हवा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना, मेरी जाना। Wonderful, wonderful. As soulful as ever. Thank you so much. And this song, Shahid Kapoor, this was actually sung by Jay Walia. And आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं क्या, दीवाना। आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं दीवाना। हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं दीवाना। Then Wow. we left you with this one. देखा है तेरी आँखों को, चाहा है तेरी अदाओं को, देखा है तेरी आँखों को, चाहा है तेरी अदाओं को। इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, जाने जाना तुझे है कसम, देखा है तेरी आँखों को। Thank you very much for calling me. Thanks. I must, join everybody else in clapping. Really, really wonderful, really, really soulful, and so very magical. And I really couldn't have asked for more. Having you live with us and you singing some of my favorite numbers, classics as well as new ones. I really am obliged, and on behalf of Transcontinental Times and on behalf of all my viewers, I really thank you, and I wish you all the very best for all your upcoming projects. Thanks so much, Murtaza. Pleasure is all mine. Thank you very much, Transcontinental Times and Murtaza, for calling me in. And please do watch my next song. YouTube channel is Sadu Music. Page also is Sadu Music. So please. और हम लोग अभी ये लिंक्स भी शेयर करेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर। तो ये थे द वन एंड ओनली द लेजेंडरी साडू, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम एक और लेजेंडरी पर्सनैलिटी को लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं मुर्तजा अली खान आपसे इजाजत लेता हूँ। बाय फॉर नाउ।